Okay, so we go to Newton's third law. Newton's third law. So all of us think that we know third law, but I'll right now say whatever third law you know, that is all crap. You don't know anything. You'll immediately say Newton's third law is every action has an equal and opposite reaction. If you write that in physics, you get a big zero, because that's a literature perspective of third law. है ना, हम कहते हैं जो करते हो karma returns back, every action has an equal and opposite reaction. जरा देखो third law कैसा है. पहले third law से पहले ये हमारे पास एक body है. We got a body like this. Okay. So if you look at first law, the first law says that this body, when it is at rest, it remains at rest, and when it is in uniform motion, that is constant velocity, it remains in constant velocity, unless and until an external force, or we say net force, acts on it. So if you look at this law, then there is a net force which is trying to act on this body. Let's look at second law. Second law tries to measure this net force. This net force is equal to mass times acceleration. ठीक है, तो बॉडी के साथ बड़ा नाइंसाफी हो रहा है कि बॉडी पे हमेशा फोर्स ही एक्ट होता है. ऐसा थोड़ी है, बॉडी इज नॉट वकुल ना, दैट एवरीवन विल स्कोल्ड हिम एंड ही इज लाइक द मंदिर का घंटी, कोई भी आते जा रहे टंग बजा के जाएगा. बॉडी को भी तो कुछ राइट मिलना चाहिए, दैट बॉडी शुड आल्सो बी एबल टू एक्सर्ट फोर्स. ये थर्ड लॉ आपको ये प्रॉपर्टी नाउ दिस इज गिवन बाय थर्ड लॉ. थर्ड लॉ इस बॉडी को बोलेगा क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, आपको कोई फोर्स एक्ट करवाना है, दैट इज थर्ड लॉ. थर्ड लॉ फर्स्ट टाइम विल गिव द बॉडी और एनेबल द बॉडी टू काउंटर विद अनदर फोर्स. तो सुनिए पहले थर्ड लॉ कैसा है. ठीक है, इन थर्ड लॉ वी से लाइक दिस. थर्ड लॉ में हम दो बॉडीज को कंसीडर करते हैं. से दिस इज बॉडी 1 एंड दिस इज बॉडी 2. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. पहले डेफिनेशन में मत जाइए, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ बॉडी 1 exerts a force, say F12. How to read F12? F12 is a force which is exerted by 1 on 2. इसको ऐसे पढ़िए. F12 इसको हमने वेक्टर लिखा दिया है, is a force which is exerted by 1 on 2. If a body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body. सुनते जाइए, ठीक है. So third law says if one body exerts a force on another body, then the other body will exert a equal and opposite force. So this force which it is exerting is F21, that is force exerted by 2. आप इस पे हमेशा जुल्म नहीं ढा सकते हो, ये भी जुल्म ढाएगा आपके ऊपर. समझ में आया ना? So this is the force exerted by the other body, and it says exerts a equal and opposite. So let's try to understand what do we mean by equal and opposite. तो यहाँ पे दो बात हो रही है. एक वर्ड आ रहा है equal. Equal मतलब it is directly hitting the magnitude part of the force. Are you understanding? अगर ये फोर्स मान लो 5 न्यूटन का है, तो ये भी फोर्स कितने का होगा? 5 न्यूटन का ही होगा. Number 1. And then the other word that we get in Newton's third law is all about opposite. ऑपोजिट का मतलब है अगर ये फोर्स ईस्ट टू वेस्ट मारेगा, वो वेस्ट टू ईस्ट मारेगा. तो यहां हम इसे we will put the vector part. We will say F12 is a force which is equal to F21. No, we can't say it's only the magnitude. We can't write this because only the magnitude is equal. The direction is not equal. So what do we put? We put a minus out here. तो नेट फोर्स 0. अभी आप सुनो ना, मेरी बात सुनो. This force is acting from east to west. ये कितना है? 5 न्यूटन. I am having another force which is on this side, which is acting from west to east. मान लो ऐसे west to east हो रहा है. तो इसका फिर आप बोलोगे सर ईस्ट वेस्ट का आपका कॉम्बिनेशन गलत हुआ है. चलो ऐसे कर लेते हैं, एक मिनट. हाँ, so say this is west से east जा रहा है, एक और फोर्स आपका east से west आ रहा है. This is also 5 न्यूटन. If this force is F, this is minus F. Minus means 180 degree opposite है इसका. And then only right now if they were acting on a body, what is the net force? 0. So you add the two forces, F plus minus F. 5 Newton plus minus 5 Newton. It becomes how much? 0. समझ में आया? अब देखते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ को. न्यूटन कहता है if a body
exerts a force on another body, the other body exerts an equal and opposite force on the first body. This is how you write Newton's third law. You don't write every action has an equal and opposite reaction. You say in a two-body system, if a body exerts a force on another body, the other body exerts an equal and opposite force on the first body. Have you understood this? This is the first part. And you can show it by this diagram. This does not mean, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि इन forces को हम थोड़ा सा name भी देते हैं. Now let's see what is the name we are going to give to these forces. Okay. Now say B1 is exerting a force on B2. अगर B1 to B2 वाले force को हम कैसे नाम देते हैं? हमने इस नाम force को नाम दिया action force. तो B2 जो B1 पे लगाएगा उस force को हम बोलते हैं reaction force. ठीक है? और यहां से जन्म होता है एक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. न्यूटन्स थर्ड लॉ में एक्शन फोर्स कभी भी अकेले एक्ट नहीं हो सकता. इट कांट बी दैट एक्शन फोर्स इज अलोन. इफ एक्शन इज देयर, रिएक्शन हैज टू बी देयर. इफ यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई इट, इट इज योर फॉल्ट. Action cannot act alone, reaction cannot act alone, because Newton says whenever there is an action, there has to be a reaction. Have you understood? They work in pair. The next concept, this is one concept, and the next concept is the action reaction forces or the pair will always be similar type of forces. It is similar type of forces. What do you mean by similar type of forces? If the action force is a magnetic force, the reaction force has to be magnetic. Say suppose you are in a scenario that I am pulling this body with 5 Newton magnetic force and she is pulling me back with 5 Newton electrostatic force. You say that it is Newton's third law? No. It is a case of balanced forces, but this is not Newton's third law. Newton's third law says action reaction pair must be of same forces. So let's see some examples. If action force is friction, reaction force should be friction. If action force is gravitational, reaction force should be gravitational. If action force is tension, reaction force should also be tension. ये याद रखिए. अब इस चीज को आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दिखाता हूं जहां आपका मन पहले मानेगा नहीं. ठीक है, देखते हैं. आइए. Say for example, there is a force which we call as normal reaction. ये 11 जब पढ़ेंगे आपको खूब आएगा ये. What is a normal reaction? So a reaction force always acts between the contact of two surfaces. जैसे मान लीजिए ऐसा एक स्लाइडिंग लैडर है और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया है. ऐसे ब्लॉक रख दिया. This is a wall slide. Reaction force will always act where? At the contact of two surfaces, and it will always act normal. Normal in geometry means 90 degree. तो कैसा रिएक्शन फोर्स होगा? मान लो यहाँ पे हम दो बॉडी ले लेते हैं. इसको हम बॉडी 1 ले लेते हैं, इसको बॉडी 2 ले लेते हैं. ठीक है, आइए रिएक्शन फोर्स देखते हैं. Body 1 will exert a normal reaction force on this side. Let's say this is F1 to N, normal reaction force. Have you got it? At this time, there will be another normal force which will be exerted by F21N. This is action-reaction pair. Are we understanding? So this brings us to a very, question where you will now have a lot of issue. Let's see that. Let's say you have a tabletop. ऐसे एक tabletop है. ये 2D में करने से 1D करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. Let's say this is a tabletop, right? And on this tabletop I have kept a book. बड़ा कॉमन एग्जांपल है और बहुत बुक्स में ये गलत ड्रॉ करता है. इवन लखमीर सिंह में भी this is wrong. Okay, this is a book on the table. क्या टेबल ब्रेक हो गया? नहीं हुआ ना. बुक अपना वेट तो टेबल पे एक्सर्ट कर रहा है, टेबल ब्रेक नहीं हुआ. इसका मतलब टेबल एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है वेट को बैलेंस करने के लिए. टेबल की जगह अगर हाथी बिठा दूं, बुक की जगह हाथी रखने से टेबल टूट जाएगा. तो इससे एक चीज पता चला, नॉर्मल रिएक्शन एक लिमिटिंग फोर्स है, एक लिमिट तक ही वो देगा. राइट? You sit on this table, might be nothing happens. I sit on this table, the table might rupture because
the normal reaction that this table will give will be to a certain extent. अब बात सुनिए, क्या आपको लग रहा है टेबल वेट exert करेगा? करेगा. So let's give a weight to this table. ठीक है, ये टेबल अपना वेट डाल रहा है. So let's say this is W, the weight of the table. Don't you think that there should be a normal reaction also? Okay. Now see how I'm drawing it. यही आपको सब clear कर देगा. So the normal reaction is exerted from where? From the contact surface. And right now, system is balanced. लोग इसको क्या समझते हैं पता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ. गलत है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं है. मैं फोर्सेस लिख देता हूं. इसको मैं क्या लिखूंगा? नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन ऑफ टेबल ऑन बुक. ये क्या है? वेट ऑफ बुक. ये अब ये बैलेंस्ड है, इसीलिए तो ना ये गिर रहा है. माय क्वेश्चन इज, if the normal reaction was exerted by the table, why did the book not fly away? The book should fly away. नहीं, ग्रेविटी तो अपनी जगह पे है. ग्रेविटी अब उसको लाएंगे, बुक को तो उड़ जाना चाहिए था ना. टेबल इज एक्सर्टिंग अ फोर्स, तो आप क्या बोलोगे? वेट ऑफ द फोर्स इज नॉट अलाउइंग द बुक टू फ्लाई अवे. वन इज वेट. वेट जो होता है ना, अगले चैप्टर में हम सीखेंगे, वेट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ये वेट कहां से आ रहा है बेटा? ये वेट इसलिए आ रहा है कि नीचे कौन है? नीचे मदर अर्थ है, ऐसे. एंड अर्थ हर चीज को अपनी सेंटर की तरफ खींच रहा है. अर्थ पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, सो द अर्थ इज पुलिंग द बुक आल्सो, राइट? हैड यू बीन इन स्पेस, दिस बुक वुड नॉट हैव बीन. अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते, ये बुक रहता क्या टेबल के बने? उठ जाता ना ऊपर. वहां तो वेट नहीं है, वहां ग्रेविटी नहीं है. So the earth is attracting everything towards it, and that is weight. Weight is a gravitational force. This is not gravitational force. They are not following action reaction concept. Are you understanding? इसको दिखा के बहुत लोग सोचते हैं this is Newton's third law. Many people in engineering also think this is not Newton's third law. अब इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ कैसे सीखोगे? जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, आप देखोगे ग्रेविटेशन में every body attracts every other body. Now the question is, if I am having a gravitational force, who is putting the gravitational force? Earth is exerting on the book. Forget the table here. Earth is trying to pull the book. So if Earth is body 1, book is body 2. Now apply Newton's law. If a body exerts a force on another body, the other body should also exert a force on the first body, equal and opposite. So what you would not like to believe, but you have to believe that the book is also attracting the earth. This is universally true. Book is also attracting the earth. So, and gravitational force or weight always acts from the center of mass or center of gravity, as you say. थोड़ी देर में आपने देखा ये येलो मैंने कहां से ड्रॉ किया था. So let us first look at the gravitational force. ठीक है, तो ये जो force आया है नीचे, this is the book is being attracted by the earth. Earth is pulling the book. That means at the same time there has to be another force in which what is happening? From the center, the book is also pulling the earth. This is the action reaction pair. Have you understood? They are cancelling each other. They are cancelling each other. And if you look at the contact surface, I said that normal reaction में दोनों body पे देगा. You are only seeing table putting a normal reaction on what? The book. Don't you think that the book should also give a normal reaction on the table? Yes. Now count the pairs. This red balances this sky blue. One pair. This yellow balances the weight. Gravitational force to gravitational force. अच्छा, आपको और इजी करके दिखा दें. आपका डायग्राम कुछ एक्चुअली ऐसा है. This is earth and this is book. Forget the table. Book is being pulled towards the earth. Earth is also being pulled towards the book. Is it an action reaction pair? Yes. Both the forces are gravitational forces. No question about it. Now let us bring the table. Where is the table? The table is here. Now let's see.
Is the book giving a normal reaction on the table? Yes. Is the table giving a normal reaction on the book? Yes. That is action reaction pair. What you see in the diagram is they don't show you the force with which the earth is being pulled, and they are not showing you the reaction pair. See, total how many forces are there? Let's write them so it will become clear. Let's see on downward. On downward, how many forces are there? You have one weight of book. Do you agree? And this is what type of force? Gravitational force. You also have normal reaction of book on table. Do you agree? This is a reaction force. Let's see the upward forces. What are the upward forces you have? Number one, book pulling the earth. और ये अभी आप मान नहीं रहे हो, अगले चैप्टर में आप मान लोगे. This is correct. This is a gravitational force. And another one is normal reaction of table on book. What you should appreciate as students of science is that this one balances this one, action reaction pair, and this one balances this one. What you see in the diagram of Lakshmi Singh book and all, which many students of physics do garbar, they think that this one and this one are action reaction pair. आप लक्ष्मी सिंह का किताब है ना आपके पास, आप खोल के देख लो, आप खोल के देख लो, आपको यहाँ पे गलती नजर में आ जाएगा. ये देखिए, weight and reaction. Weight and reaction are not action. Weight is a gravitational force. Reaction is what? A reaction force. They are equal. This body is in equilibrium, but this is not action reaction pair. ये गलती बहुत लोग बचपन में कर लेते हैं, क्योंकि ड्राइंग में ये दो दिखाते हैं. Actually, 4 forces are acting. Is this thing understood? Are you clear? Any doubt you have on Newton's third law? So how do you write Newton's third law? When a body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body. You can write, when a body exerts a force on another body, or in a two-body system, if one body exerts a force on another body, the other body exerts an equal and opposite force on the first body, and this pair of forces are termed as action reaction pair, where one force is termed as action and the counter force is termed as reaction, and you have a choice to that. You need not be that, sir, this force should be action. ऐसा कुछ नहीं, आप इसको action लो तो उसको reaction ले सकते. So giving a tight slap on somebody's cheek, does this qualify in Newton's law? Third law. सोचो, आप मस्कुलर फोर्स मार रहे हो ना किसी के गाल पे, आपको भी तो उतना ही चोट लगता है ना, तो उसका भी तो मसल आपके हाथ में मार रहा है. मस्कुलर फोर्स टू मस्कुलर फोर्स. यस, न्यूटन्स थर्ड लॉ, बिल्कुल न्यूटन्स थर्ड लॉ है. Always equal, but you might not see the same. See, now it's a very nice question. He's saying, are the forces equal? Yes, forces are always equal. But if you bring two bodies of different mass, acceleration produced are different, because force is mass into air. Force will be 6 Newton. If the body is of 1 kg mass, then acceleration is 6. If the body is of 3 kg mass, acceleration is 2. If the body is of 2 kg, that's the reason you don't see the earth coming towards the ball. बॉल और अर्थ दोनों एक दूसरे को एक ही फोर्स से खींच रहा है. बॉल का मास ससुरा बहुत छोटा है, इसलिए उसका एक्सीलरेशन बड़ा है और आपको दिखता है बॉल नीचे जा रहा है. वहीं अगर आप बॉल को हटा के जुपिटर और अर्थ को ले आए और बाकी सब प्लैनेट हटा दे, अर्थ पटाक करके खिंच जाएगा जुपिटर के पास. जुपिटर का मास बड़ा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Did you get what I'm trying to say? See, although we studied in gravity chapter, this is ball and this is earth. Say the force between them is how much? 6 Newton. Now say इसका वजन है 6 kg, इसका वजन है 1 kg. 6 Newton force will create acceleration of how much? 1 meter per second square. इसमें कितना acceleration create करेगा? 6 meter per second square.
तो भागेगा कौन? ये भागेगा ना। इसलिए आपको ये प्रतीत होता है कि पृथ्वी के ऊपर कोई भी चीज हमारे हाथ में गिरता है। न्यूटन सॉ द एप्पल फॉलिंग। न्यूटन ने कभी जुपिटर को गिरते नहीं देखा। इफ न्यूटन वाज इन जुपिटर ही वुड हैव सीन द अर्थ फॉलिंग ऑन हिम। मोटा वाला चीज कभी हिलेगा नहीं। क्लियर? आगे बढ़े? हाँ बोलिए, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, why does the player not ride by? Player's mass is much more than the ball. As simple. Question of momentum again. The ball's mass, that is what we will see now. Next topic. The ball's mass is less. To understand that, you have to understand conservation of momentum. ये समझ में आया? अब इसके कुछ examples देखते हैं और यही सब आपको पूछे जाते हैं. Some examples of Newton's third law every day. Yeah, बोलो ना बेटा. Which one? No object, gravitational force can never be repulsive force. Gravitational force is always attractive. कौन से? वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है रिपेल करने, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ मच मोर स्ट्रॉन्गर फोर्स देन ग्रेविटेशनल फोर्स. आपको प्रूफ चाहिए? आप अपने बालों में कोम लगा के छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करा लीजिए. इसको एग्जांपल देना जरूरी है. ये है मदर अर्थ, ठीक है ना? इसमें है, ये है अनन्या. क्लियर है? ये आप अपने बालों में कोम लगा के, इस कोम को यहां पकड़ के इसमें छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर्स लगा के रखे हो. क्या ये पेपर्स को अर्थ नहीं खींच रहा है? फिर भी ये इसके साथ चिपका हुआ है, तो कौन सा फोर्स बड़ा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा है ना. इट इज 10 to the power 9 times more. Gravity is such a weak force that we don't even consider it while designing anything. ये बिल्डिंग डिजाइन करते वक्त कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस टावर एंड दैट टावर डिजाइन नहीं होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स टेक्स इट्स रोल. वी विल डू सम प्रॉब्लम्स, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. मैं आपको और अच्छा एग्जांपल देता हूं. आप ये बोल रहे हो, ये देखो टीनेज प्रॉब्लम. ये है बस स्टैंड. यहां रोज सुबह एक खूबसूरत सी लड़की बस का इंतजार करती है और यहां रोज सुबह वकुल जाके पहुंच जाता है. वो न्यूटन के लॉ में समझता है एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, है ना? और ये हम आपको प्रूफ करेंगे ग्रेविटी. ये अब सिर्फ ये ट्रेलर रहा, ये प्रॉब्लम रख लेना. अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, यू जस्ट आस्क मी, वी विल मैथमेटिकली प्रूफ वेदर ये अट्रैक्शन होता है कि नहीं. साइंस कहता है होता है, इट्स नॉट रॉन्ग. But before giving that proposal, Vakul would like to verify कि कहीं ऐसा तो न हो कि सजनी ने फूल तो मारा पर गमले के साथ मारा, है ना? तो फिर लफड़ा हो जाएगा. Vakul will be in Continental Hospital, हम जाएंगे उसको देखने के लिए. तो ये क्वेश्चन आप रख लीजिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए, ठीक है? आइए कुछ एग्जाम्पल. हाँ तो हाँ चलो अब नया चीज देखते हैं. न्यूटन्स थर्ड लॉ के कुछ डेली एप्लीकेशंस. ओके, लेट्स सी सम डेली एप्लीकेशंस. लेट्स से दिस इज अ शोर and this is water. Okay, this is a shore and this is water, and we are typically in Goa or somewhere, and the boat has come till the shore. ठीक है? And now it is your time to actually get out of the boat. So आप बोट से कैसे आगे बढ़ते हैं? How do you walk actually? Your walking is, you will actually give a force to which thing? To the boat on this side. Frictional force. Body is the man, gives a force on the boat second. So the boat has to give an equal and opposite force to you. आप बाहर जाते हो. That is how you walk. You try to push the ground pushes you ahead. Newton's third law. Rocket का उड़ना, the rocket is giving a thrust downwards and the thrust is again giving a force. Aeroplane का ऊपर टेक ऑफ करना, thrust नीचे देगा तो ही वो thrust देगा वो ऊपर जाने के लिए. कितना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है. ये सब प्रॉब्लम्स भर भर के आपको मिलेंगे कैसे? जैसे बुलेट रहता है, if the bullet goes out, the gun also recoils on your back, है ना? So we say that if one body, but always remember that the action reaction pair should be same. If it is a friction force, the other should also be a friction force. Now when you go for books which are in abroad countries ना, they picturize this in a very nice. एक प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ, कितना सुंदर प्रॉब्लम है. देखिए, ये मैंने भी अपने स्कूल लाइफ में नहीं पढ़ा. जब IB वगैरह के बच्चे पढ़ाते हैं ना, तो उनकी बुक्स में कितने अच्छे प्रॉब्लम होते हैं. दिस इज प्लैनेट अर्थ.
and you have the International Space Station somewhere here. An astronaut has gone out the International Space Station right now, and he is doing some repair work. Usually astronauts will always go with one clamp. मान लो clamp नहीं है, and he is performing some job out here, and he has got an oxygen cylinder out on his body, and he is at a distance of something. Okay, this is a nice problem that they have. हम करेंगे नहीं, appreciate करते हैं इसको. The astronaut suddenly realizes that he has only 10 or 2 minutes worth of oxygen left in him in order to survive. He has to get inside, but somehow he has now lost his contact with the space station body. मतलब जिस बॉडी पे वो काम कर रहा था, क्लैम्प खुल गया है और वो अभी लटक रहा है ऐसे. मैं इस I am right now near this board. Are you trying to understand how the scenario is? And my oxygen is only having how much? Some 2 minutes or something. After तक का अगर मैं अंदर रह गया, now how does the astronaut get inside? तो इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं कि 2 मिनट्स है, डिस्टेंस कितना है, हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हमें मिल जाता है. तो वी गेट टू नो हाउ मच एक्सीलरेशन दिस एस्ट्रोनॉट शुड हैव. We know the mass of the astronaut, so we have to create that much acceleration, then only we will go towards the spaceship. Are you understanding? ये astronaut को इस problem में बोलेगा. The astronaut as a part of all his toolkit is also carrying a hammer in his hand. The only way he can survive is by throwing the hammer on the opposite side. When he throws the hammer on the opposite side, the hammer gives an equal and opposite force to him, and he gets inside the space station. कितना सुंदर problem है. So that's swimming is also the same way. You push the water, water pushes you ahead. तो ये hammer समझ में आ गया ना. तो इसमें लिखता है with what force should he act, and the forces should be equal. So you have calculated how much acceleration you want. You know your mass, so you know your force. Now this is particularly the hammer. अब hammer में कितना force से हम फेंकेंगे ताकि ये हमें आगे push कर दे space में. ये भी problem है. ठीक है. So these you can read in your books. They're nothing great. So I'm giving you some of the examples. The examples are aeroplane lifting its thrust, then a rocket propelling upwards, then man. This is one of the beautiful example. How from the boat you, और जब भी आप boat से यहाँ पे जाएंगे, if you have taken a boat ride at Gateway of India, Bombay, Goa, कहीं भी, तो you will always see when you get out of the boat थोड़ा सा इधर चला जाएगा. As you go that side, the boat will also the races way करके चला जाएगा. इसलिए क्या होता है, जब पहला वाला आदमी जाता है ना, दूसरा वाला आदमी फट से नहीं जाता है, वो फिर थोड़ा सा बोट को खींचेगा पास लाके, then only you get across. Have you understood Newton's third law? Newton's third law से जो next चीज हमारा पैदा होता है, that is a concept. Although CBSE has now taken this off, this hung up. CBSE has now, every day this is happening. 1 minute, children. Enjoy. We have some technical snag. I can't do anything. यार चांस मिला है बात करने का, कर ना. कम से कम मेरे पे तो प्रेशर नहीं आता है ना. Give me 2 minutes, huh? Till the, acha, 1 minute till here, are you all fine? Yes. Because I may not be able to save this into PDF what I've explained so far, because I sense this is hung up, and if this is hung up, I have to restart it. और कोई रास्ता नहीं है. Okay. One minute, huh? Okay, चलें भाई साहब, आइए, come back.
So the next topic that we learn is from Newton's third law, और इसमें कुछ problems करेंगे. Earlier this used to be a part of our chapter, conservation of linear momentum, और conservation of momentum लिखा रहेगा. The momentum that you study at this grade is linear momentum. Conservation of momentum. जैसे आप पढ़ते हो conservation of energy. Conservation of energy का क्या होता है, कैसे पढ़ते थे आप? Energy is neither created nor destroyed. Energy can only be converted from one form to another. The overall energy of the universe is, what you say, is constant always. So conservation of linear momentum. It means momentum ना तो खर्चा होता है, ना momentum create होता है. अब वो चीज को समझने के लिए ऐसे समझते हैं. Let us say we have got two bodies. Body 1, और से बड़े मजेदार प्रॉब्लम होता है, body 2, ठीक है. And this body 1 and body 2 constitute what we call as a system. Have you understood? Anything outside this system is called exterior to the system, and anything inside is interior. Now let's say बॉडी 1 बॉडी 2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, बॉडी 2 बॉडी 1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. ऐसे सारे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्सेस, बिकॉज दीज फोर्सेस आर एक्टिंग विद इन द सिस्टम. बाहर भी तो कोई फोर्स हो सकता है, सम अदर बॉडी, कुछ मान लो सम ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, दोज विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल फोर्स. अब बात करते हैं व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हम कहते हैं इन अ टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल और टू बॉडी सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम, राइट, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम remains unchanged provided no external force acts on the system. सुनिए, पहले समझिए चीज को. If I have a system means I have, this is a theoretical concept, a system where there are only two particles or two bodies, then do they exert force on each other? Must be. We don't know. If they are exerting forces on each other, those forces are called internal forces. भाई साहब, internal forces से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस सिस्टम को बाहर से भी फोर्स लग सकता है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस. ये लॉ बड़ा सुंदर है. ये कहता है अगर आप दो पार्टिकल सिस्टम है तो इस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है, विल कम टू दैट, रिमेन्स कंजर्व्ड. उसका कोई खर्चा नहीं होता है. दैट इज नाइदर लॉस्ट और क्रिएटेड और ग्रोज और डिप्लीट्स इन द कंडीशन दैट नो एक्सटर्नल फोर्सेस शुड बी एक्टिंग ऑन इट. अब ये बड़ा डेंजरस कर दिया है आपको. ऐसा कैसा बोल दिया है कि नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट्स ऑन इट. ऐसा हो सकता है क्या? हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, कोई भी उसे छेड़ेगा नहीं, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, कोई उसको कुछ नहीं बोल सकता. ऐसा बड़ा यूनिक केस हो गया. तो हम कहेंगे क्या? पापा को बोलो अपने लिए अपने घर पे एक स्कूल खोल ले. इन अदर वेज आई एम सेइंग यू बी एन आइसोलेटेड चाइल्ड. ऐसा सिस्टम को हम कैसे बोलेंगे? ये कुछ और नहीं, बट इट इज कॉल्ड अ isolated system. So in many books you will see this word isolated system. What is an isolated system? An isolated, these are all theoretical, na? Isolated system is a system where there is no influence of any external forces. ना इस पे बाहर की ग्रेविटी कुछ एक्ट कर रहा है, ना बाहर का कोई जुपिटर इस पे कुछ कर रहा है. बड़ा काल्पनिक सा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना. हाँ, और no, vacuum also has got force. You are facing, that body is facing forces from us. Isolated means you are totally a different system. It can only be conceptualized. Have you understood? So why do we conceptualize this system? Now, if such a system can be conceptualized, अब आपके दिमाग में आप ले लो, एक सिस्टम है हमारे पास, एकदम अलग से कहीं पे है, वहां दो बॉडी है, यहां का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा. ऐसा का मतलब क्या है? चाहे यहां कुछ भी मारपीट हो जाए, मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगा. थोड़ा समझ में आ रहा है? तो आइए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. सो लेट्स टेक आवर आइसोलेटेड सिस्टम. दिस इज आवर, नाउ सिस्टम इज आइसोलेटेड.
I have got two bodies out here, maybe different shape, B1 and B2. इनके बीच में मारपीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वी से इनका मोमेंटम, टोटल मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता है. दैट मीन्स दिस सिनेरियो ब्रिंग्स अस टू समथिंग लाइक, मान लो इस इंटरनल सिस्टम में समथिंग हैपेंड व्हिच आई कॉल एज इंसिडेंट. अब इसको देखो, सोचो, इंसिडेंट क्या हो सकता है? दोनों कोलाइड कर गए, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर एक वेलोसिटी से जाकर मार दिया अंदर पे, है ना. अब इसमें फिजिक्स घुसाई है. अ कार हेड ऑन बैंग्स अनदर कार. So to understand the structural analysis of how much damage will happen, we simulate this system बाहर पे. इसका सिमुलेशन होता है आइसोलेटेड पकड़ के. बट रियलिटी में दो गाड़ी जब धक्का खाता है रोड पे, क्या ये आइसोलेटेड सिस्टम है? बिल्कुल नहीं. साथ में कितने सारे और गाड़ी वाड़ी हो सकता है, रोड है, फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन है, ड्रैग है. इफ आई गो विद अ साइकिल एंड आई हिट हिम, he is also riding, I am also riding, we collide. We are not in isolated system, right? Because there is friction, there is air, so many external forces. But to understand the mechanics of that particular incident, we have to take two of us and put in an isolated system to do the study. Study करते वक्त हमें isolated करके पढ़ना पड़ेगा. तो मान लो कुछ एक इंसिडेंट होता है, और ऐसे प्रॉब्लम्स में हमेशा इंसिडेंट होगा, कुछ ना कुछ तो घटेगा. क्या हो? या तो कोई किसी को टक्कर मारेगा, एक फुटबॉलर दूसरे को उड़ा दे, कुछ ना कुछ तो होगा. ऐसे इंसिडेंट में दो पार्ट्स रहते हैं, बिफोर इंसिडेंट एंड आफ्टर इंसिडेंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? मतलब सिस्टम का मोमेंटम बिफोर द इंसिडेंट should be same as system का momentum after the incident. So I say that the momentum of the system before incident will always be equal to momentum of the system after the incident. Are you understanding? That is called conservation. शॉपिंग मॉल जाने से, ये शॉपिंग मॉल है, जाने से पहले जितना पैसा था, आने के बाद भी उतना ही पैसा है, तो हमारा पैसा कंजर्व रहा ना, सीधी सी बात. अब इसको थोड़ा और तोड़ते हैं. कैसा है? मोमेंटम बिफोर द सिस्टम, बिफोर द इंसिडेंट. मोमेंटम क्या होता है बेटा? मास टाइम्स वेलोसिटी, करेक्ट. नाउ दिस इज बिफोर इंसिडेंट. मान लो बिफोर इंसिडेंट ये दो बॉडी, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसको कुछ एक इनिशियल वेलोसिटी है u1, इसको कुछ एक इनिशियल वेलोसिटी है u2. सो व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द इंसिडेंट? m1 u1 plus m2 u2. Do you agree? And this will be your fundamental equation for, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, सिर्फ दिमाग लगाने से हर प्रॉब्लम होगा. This must be equal to, अब कुछ इंसिडेंट हो गया इसके अंदर, कुछ कांड हो गया, कुछ एक्सप्लोजन हो गया, धक्का धक्की लग गया. ऐसा एक्सप्लोजन हो जाने के बाद मास में कोई चेंज नहीं हुआ. ये सब कितना काल्पनिक है देखो. मास में चेंज नहीं हुआ है, पर वेलोसिटी इसका हो गया v1, इसका हो गया v2. इधर मुझे नहीं पता. आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट समझ गया हो ना? दो स्नूकर बॉल ले लो, बिलियर्ड बॉल टक करके लग गया ऐसे, तो इसका मोमेंटम आफ्टर द इंसिडेंट क्या हो जाएगा? m1 v1 plus m2 v2. This is the equation of conservation of linear momentum. अब आप इसको याद भी कर सकते हैं, पर सारे प्रॉब्लम हम कर सकते हैं बिना इसके. बस एक चीज याद रखना है, ये चीज मत भूलिए. इंसिडेंट, इन एवरी प्रॉब्लम ट्राई टू हंट व्हाट इज द इंसिडेंट and then see what is the momentum before incident, what is the momentum after the incident, equate them. But it's not that easy as you are thinking. Velocity is a vector quantity. So we will see, जैसे कभी कभी होता है ना, ये एक गाड़ी है और मान लो ये एक गाड़ी है, हेड ऑन मारा, हेड ऑन मारने से पहले कैसे आ रहे हैं दोनों गाड़ी? ऐसे आ रहे हैं. अगर इसको आप u1 ले रहे हो, ये नेगेटिव u2 होगा, लेकिन ये उल्टा जा रहा है. धक्का खाने के बाद ये गाड़ी छिटक गया इस तरफ, तो इसका जो v1 है वो नेगेटिव हो गया, इस और ये इस साइड आ गया. ऐसे भी हो सकता है ना? तो बिल्कुल हजार कांड हो सकते हैं. देखिए साहब कैसे हो सकता है. ये मेरा एक गाड़ी, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं ये प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं. ये एक गाड़ी है, ठीक है ना, और ये एक और गाड़ी है. इसमें यही सब आएगा, हेड ऑन कोलिशन. इस गाड़ी ने इसको पीछे से बैंग कर दिया, धक्का. अब इसमें क्या हो जाएगा?
जनरली पीछे धक्का मारने के बाद, ये आर्मी का टैंक है मान लो, और इसको ऑल्टो ने आके धक्का मारा है, ये हिलेगा? ऑल्टो का मूवमेंट किस साइड हो जाएगा? इस साइड। ये भी पॉसिबल है। ये धीरे धीरे जा रहा था, जोर से आके आप इसको मार दिया, दोनों मारने के बाद इसी साइड जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। एक और हो सकता है, ये मारने के बाद इसके साथ चिपक गया और कंबाइंड बॉडी होके सर्र करके ले गया उसको। ये भी तो होता है, ये भी तो एक्सीडेंट में होता है, एंड यू विल गेट दिस प्रॉब्लम। एक गाड़ी जब, वेरी बैड टू से बट स्टिल, व्हेन अ ट्रक और समथिंग हिट्स अ टू व्हीलर, वो टू व्हीलर को सटा के लेके नहीं जा रहा है, देन इट बिकम्स अ कंबाइंड मास सिस्टम। कुछ प्रॉब्लम्स करें, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा सिनारियोस कैसे हैं ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सो लेट्स टेक सम प्रॉब्लम्स। आइए, है क्या? हाँ, पहला प्रॉब्लम बड़ा यूनिक, एक एक में एक एक चीज। क्वेश्चन कॉपी मत करो, पेन्स डाउन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। देयर इज अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को। पहले ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसे गन है, एक गन है, इस गन से हमने क्या फायर किया है? एक बुलेट फायर किया। अब बुलेट का मास कितना है? 10 ग्राम्स। गन का मास कितना है? 6 kg, भाई साहब। ठीक है, एंड इट इज बीइंग फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ हाउ मच? 300 मीटर पर सेकेंड। हमें कहता है ये इसका रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगा, वो बताइए। Common sense, gun will also recoil on the opposite side. We have to find the recoil velocity. Are we fine? Shall we go ahead with this problem? ठीक है, we can solve it in many different ways, but we will go by absolute desi system, और आप खुद ये problem solve कर दोगे। क्या हो गया, घूम क्यों गया ये? ओके, चलिए इसको solve करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले इंसिडेंट देखो तो कोई मुझे बता पाएगा इंसिडेंट क्या है? द फायरिंग इज द इंसिडेंट, फायरिंग इज द इंसिडेंट, राइट? तो इसका मतलब देयर इज आफ्टर इंसिडेंट सिनारियो एंड बिफोर इंसिडेंट सिनारियो। बिफोर इंसिडेंस जरा हम इसका मोमेंटम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या क्या बॉडीज हैं यहाँ पे? 2 बॉडीज क्या क्या है इसमें? बुलेट एंड गन। ठीक है ना? तो बुलेट का मास कितना है बेटा? 10 ग्राम्स। उसको केजी में कर ले तो 10/1000 हो गया ना। बुलेट का इनिशियल मोमेंटम बताइए, कौन बता पाएगा? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट। डोंट राइट चिल्ड्रन, डोंट राइट, एंजॉय द प्रॉब्लम। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? y0। बिफोर द फायरिंग बुलेट इज आराम से इनसाइड द गन ना। हम इसे कॉम्बाइंड मास भी ले सकते थे, मैं नहीं ले रहा हूं, पर इंटेलिजेंट बच्चा क्या बोलेगा? बुलेट कहां पे लोडेड है? गन पे ही तो लोडेड है। एक कॉम्बाइंड मास है ना बिफोर द फायरिंग, लेकिन कॉम्बाइंड मास नहीं पकड़ते, चलो सिंगल सिंगल पकड़ते हैं। तो इसका कितना हो गया? इनटू 0 इज इट्स वेलोसिटी। दिस इज योर m1 u1। गन भी तो पकड़ना पड़ेगा। गन का मोमेंटम कितना है? 6 kg। और कितना है गन का? बिफोर द इंसिडेंट 0, गन इज ऑल्सो नॉट मूविंग। आर वी क्लियर ऑन दिस? इसके बाद आफ्टर द इंसिडेंट, ठीक है, अब यहां पे आपको एक तरह का नोशन लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक अ नोशन। सो हाउ डू यू टेक द नोशन? यू थिंक योरसेल्फ, आपका प्रॉब्लम जैसा भी है, आपने अगर गन को इस साइड में घुमाया था तो बुलेट इस साइड जाता। तो जनरली वी ऑलवेज टेक दैट दिस साइड इज व्हाट बेटा? दिस साइड इज पॉजिटिव, not recoil. We don't know where it will recoil. We are idiots. This side's velocity is positive, this side's velocity is negative. As per my diagram right now, bullet is going in which direction? Negative direction. You can say, sir, if I would have drawn it in this manner, then you take bullet as positive, but you cannot. You have to be very particular with sign. I always say, do the diagram the way you want, follow the Cartesian coordinate system. Bullet is going with a negative velocity. Okay? So what do I write? 6/1000 into not 6, कितना था? 10, सॉरी। हाँ, सो बुलेट की क्या है? 10/1000 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच? व्हाट इज द वेलोसिटी? 300 माइनस ले लिया मैंने। हाँ, 300 मीटर्स पर सेकेंड मैंने माइनस ले लिया। एंड गन की कितनी है? 6 kg।
6 kg मल्टीप्लाइड बाय आई डोंट नो सम v, मुझे तो नहीं पता, और मैं ये v पे कोई साइन नहीं डालूंगा. बी वेरी केयरफुल. वकुल सेड गन शुड गो दैट साइड. आई डोंट नो, फिजिक्स शुड प्रूव इट फॉर मी. So I am just taking the gun's velocity as v. After solving this, if I get v positive, that means what? Gun is going this side. V positive means it has a sign opposite to the bullet. I can also say it is going opposite to the bullet. And if some child would have drawn it in this manner, then the gun will recoil with a negative. That means gun is going opposite to the bullet. As simple as that. Have you understood? इसको सॉल्व करने की कोशिश करें. ये साइड तो पूरा जीरो हो गया बेटा, और यही तो इक्वल होता है ना. ये साइड पूरा जीरो है, तो ये नेगेटिव वाले को इधर ले आए. 10 into 300 divided by 1000 is equal to 6 into v. नेगेटिव इस साइड आएगा तो पॉजिटिव होगा ना. कम ऑन यार, कांट स्लीप इन क्लास. हो गया. v की वेलोसिटी कितनी हो गई? 6 यहां पे आ जाएगा. 3 divided by 6 which is equal to how much? v is equal to 0.5 meter per second. What is the sign you got for v? Positive. That means the gun recoils on which direction? On this direction, opposite to the direction of bullet. Now see one beautiful thing. Momentum will always be same. आप मल्टीप्लाई करके देखो. बुलेट के केस में क्योंकि बुलेट का मास कम है, मोमेंटम इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो इट्स लाइक 6. उसका मास है 1, तो उसको वेलोसिटी कितना मिलेगा? 6. गन का मास है 5, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? बहुत छोटा. इसलिए द बुलेट इज वेरी स्मॉल बट गोज विद अ लॉट ऑफ मोमेंटम, एंड इसलिए आपके बॉडी को चीर के निकल जाएगा. इसलिए गन का रिकॉइलिंग स्पीड बहुत कम है ना, 0.5 में रिकॉइल कर रहा है. मोमेंटम, उसका मोमेंटम में मास इज द कंट्रीब्यूटर, बुलेट के मोमेंटम में वेलोसिटी इज द कंट्रीब्यूटर. वन डे यू वर आस्किंग, सर मोमेंटम समझ में नहीं आ रहा है. अनन्या, अभी फील आ रहा है? दोनों का मोमेंटम कंजर्वेशन सेम कहता है, लेकिन गन ने अपना मोमेंटम किसको ट्रांसफर किया? एक हैवी बॉडी ने अपना मोमेंटम ट्रांसफर किया एक लाइट बॉडी पे. क्रिकेट का बैट भारी होता है, बॉल छोटा होता है. छोटा बच्चा अगर बड़े आदमी को चांटा मारेगा तो वो लो बॉडी से हाई बॉडी को, उसी को चोट लगेगा. लेकिन बड़ा आदमी अगर छोटे को चांटा मारेगा तो वो मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है किस पे? लो मास पे. तो तारे नजर आ गए, सो वेलोसिटी बहुत ज्यादा आएगा. अगला प्रॉब्लम देखें. या How much does the gun recoil? how much? This is the thing. What how much? We just need the velocity here. We do not need to know how much. How much means? So meaning after finding the bullet, let's say the gun is free. Yeah. How much will it recoil? Like, if we For that we need to know the time. If you know the time, then only you will divide the time, velocity with time, you get acceleration. Then you will get to know the mass of the gun. Then you get to know the force. Or if you know the acceleration, you can calculate the distance. We have such type of problems also. ये देखिए. Let's see this. Okay. A car of mass 1500 kg. पहला ये सब प्रॉब्लम आप डायरेक्ट सॉल्व मत कीजिए. जब तक आपके पास विजुअल्स क्लियर नहीं होगा ना, आप प्रॉब्लम कर ही नहीं पाएंगे. एक कार है हमारे पास. इस कार की मास कितनी है बेटा? 1500 kg. ट्रैवल कितने में कर रहा है? 25 मीटर. मतलब इसका U1 अगर हम ले तो 25 मीटर्स पर सेकेंड पे ट्रैवल कर रहा है. Collides with another car B of mass traveling in the same direction. Wow. Something, whatever it is, that you don't worry. Okay, let's bring it. B of mass 1000 kg traveling in the same direction. बड़ा मस्ती सा है. तो यहां पे देखो, एक और गाड़ी है. This is B. This is car A. This is car B. कार B का मास कितना है बेटा? 1000. सिनारियो कैसा हो रहा है पता है ना? SUV ऑल्टो को मार रहा है. SUV ऑल्टो को मार रहा है. अभी भी वैसे नहीं है. रुक जाओ. ऐसा कुछ ऐसे नहीं देखते. 1 मिनट. ऐसे नहीं देखते हैं कि SUV ऑल्टो को मार रहा है. ऐसा होता तो बुलेट कभी भी इंसान को चीर नहीं सकता है. बुलेट की मोमेंटम हमें देखा. डोंट गो बाय द मास ऑफ दिस कार टू टेक अ डिसीजन. ऑलवेज यू शुड नो मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पीड. जिसका मोमेंटम इन फुटबॉल, इफ 2
players collide like this, ये जो आप दूसरे के साथ धक्का मारने का कोशिश करते हो ना, shoulder push, you will be successful in shoulder push only if your momentum is more than that. That does not need you need to be heavy. You can be light also. But if your velocity is more, आप दूसरे को गिरा देंगे. आपको बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं. So it is going with a velocity of how much? 15 मीटर. इसका u1 है 15 मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज आवर सिनारियो बिफोर द इंसिडेंट. फिर एक इंसिडेंट होता है. द इंसिडेंट इज द क्रैश. एक क्रैश होता है. दिस इज द इंसिडेंट, है ना, कोलिशन. आफ्टर कोलिशन वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स, ये जो ए है इसका वेलोसिटी हो गया 20, यानी कि v1 बन गया है कितना? 20 meters per second. Calculate the velocity of car B and this. So if you see, they have said that they are in the same direction. So let's say if this direction we are taking positive now, just for our understanding. V1, I have not changed the sign because after the accident also the car is moving in this direction. I'm just not drawing another two figures. Hope you have understood. Okay. So this is the crash. Let's calculate what is the momentum of the system before the crash. And you can take these as negative also. सिर्फ आपका complication होगा. आप positive लेके करो. So this is my first mass, 1500 multiplied by 25. And I add how much? 1000 multiplied by 15. Correct? This is momentum before the crash. Momentum after the crash is what? अच्छा, ये सब प्रॉब्लम बड़ा इंटरेस्टिंग है. इन क्रैशों में इतना प्यारा क्रैश होता है ना, किसी का बम्पर टूटता है ना कुछ टूटता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है. ये फिजिक्स में थोड़ा सा एज्यूम कर लिया है, देखा ना, कोई लॉस नहीं हुआ है. ऐसे प्रॉब्लम में आप हेडलाइट उड़ गया, वो उड़ गया, तो पूरा प्रॉब्लम अलग हो जाएगा. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे हमारा मास कितना है बॉडी वन का? सेम 1500. और ये कितने में जा रहा है अभी? 20. मैंने साइन चेंज नहीं किया है क्योंकि ये उसी डायरेक्शन है. मारने के बाद भी उसी डायरेक्शन, बस थोड़ा स्लो हो गया है. और उस गाड़ी का मोमेंटम कितना है? 1000. और मुझे नहीं पता कि उसकी वेलोसिटी क्या है, v2. मुझे ये v2 निकालना है. बोला कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर द कोलिशन. ठीक है. तो ऐसे प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं? 1000 निकाल के भी आप लेके जा सकते हैं. हाउ टू मेक इट वेरी सिंपल? Can you make it simple? Let's take out 1000 from here. This becomes 1.5 into 25. And this becomes how much? 15. Should be equal to, again, 1.5 into 20 plus V2. All thousands have been cancelled from each side. Can we suck out something more? नहीं, V2 अकेला हो गया ना, तो और कुछ पॉसिबल नहीं है. अब इसको मल्टीप्लाई कर लो. कितना हो गया? 15 5 75 5 7 carry over 15 to 30 plus 7 37. So it's 37.5 and add 15 with it, right? This is 0.5, 7 plus 5, 12, 2, 1 carry over, 1 and 1, 2 and 3, 5. And reduce this much. ये कितना हो गया? 15 into 20 कितना होगा? 1.5? 30. So we will reduce how much? 30 from here. Did you understand the calculation? 15 1.5 है ना, तो 30 होगा ना. तो गया कितना हो गया? 5 2 2. इसकी स्पीड हो गई है 22.5. मजेदार चीज देखो, इसका स्पीड बढ़ गया है एक्सीडेंट के बाद. अब एक्सीडेंट से पहले जरा देखो, अगर इसका स्पीड बढ़ गया है तो इसका स्पीड घटा है, इसे ट्रांसफर किया होगा. जरा मोमेंटम कैलकुलेट करो तो एक्सीडेंट से पहले 1500 मल्टीप्लाइड बाई 25. 15 इंटू 25 आप जानते हो 37,37500 कुछ होगा. 1000 इंटू 15 कितना है? 15,000. किसका मोमेंटम ज्यादा है? इसका मोमेंटम ज्यादा है. इसलिए इस मैच में ये he will take the call. So he crashed or banged it in such a manner कि इसकी स्पीड बढ़ गई है और इसका स्पीड घट गया है. This is typically like a bullet type of a case. Generally हम भारी चीज से मारते हैं. कैरम में स्ट्राइकर को मोटा रखा जाता है, स्ट्राइकर का मास ज्यादा है. कॉइन हल्के होते हैं. जब वो मोमेंटम ट्रांसफर करता है तो कॉइन छटाक से जाके आएगा. These are all done by isolated system. I told you, na, the analysis is always carried out in isolated system concept. Otherwise, we can't solve this problem. These problems are always solved by the concept of conservation of linear momentum. Real life में ऐसा धक्का थोड़ी होगा, उसमें फ्रिक्शन नहीं था, एयर नहीं था. There were so many external forces acting.
but those external forces are not considered. So you isolate it and then simulate it. एक और problem देखते हैं. A bullet of mass 10 gram, I don't know whether we'll have time, I'm expecting someone to come also. A bullet of mass 10 gram is moving with a velocity, this is very interesting. Okay, a bullet of mass 10 gram is moving with a velocity of 400 meters per second, gets embedded in a freely suspended wooden block of mass 900 gram. समझिए पहले, एक वुडन ब्लॉक ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड है. फ्रीली सस्पेंडेड मतलब समझो ना, ऐसे एक एस हुक में है, इस पे आपने एक बुलेट मारा है, कितने 10 ग्राम का, और वो ब्लाब्ला स्पीड से जा रहा है. मतलब ये है हमारी बुलेट, ये 10 ग्राम का बुलेट कितने स्पीड से जा रहा है बेटा, 400 मीटर्स पर सेकेंड. और ये जाके धक्का मारता है एक सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक, इसका मास कितना है 900, एंड गेट्स एम्बेडेड, सस्पेंडेड, फ्रीली सस्पेंडेड एंड गेट्स एम्बेडेड. और बुलेट जाके यहां एम्बेडेड मतलब चिपक गया. अब आप समझ रहे हैं, कॉम्बाइंड मास प्रॉब्लम है. आफ्टर द इंसिडेंट क्या है, बुलेट हिटिंग इट, आफ्टर हिटिंग ये लेकिन सिंगल मास सिस्टम हो गया. इसका वजन कितना है 910 ग्राम. 900 और 10 ग्राम यहां से आया. देखो फिजिक्स कितना मजेदार चीज है. 900 ग्राम कैलकुलेट. अब नाउ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक. तो ब्लॉक भी तो पटाक से ऐसे हिलेगा ना, तो कैलकुलेट कर लेते हैं. इंसिडेंट क्या है, इंसिडेंट इज द स्ट्राइक, राइट. चलो बिफोर इंसिडेंट देखते हैं. व्हाट इज द बुलेट्स मोमेंटम, 10 ग्राम बाई हाउ मच 1000. बिफोर द स्ट्राइक क्या हो रहा है, व्हाट इज द बुलेट स्पीड, bullet is coming with 400 is bullet speed. And what about the block, 900 grams, so 900 by 1000 into laddu. Block is right now stationary. After the incident, what is happening, there are no two body system, it's a combined body. 910 divided by 1000 multiplied by v2, we don't know what the velocity is. और यहां से आप वेलोसिटी, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो. अगर बुलेट एम्बेड नहीं होता एंड द बुलेट स्ट्राइक करके, आयरन प्लेट है, बुलेट नीचे गिर गया, बुलेट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, और इसकी वेलोसिटी कितनी है v2, एंड देन यू कैन कैलकुलेट. अब अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो भी ये प्लेट किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ ही मूव करेगा ना. आपने इसको जो साइन लिया है इसमें वही साइन आना ही पड़ेगा. 1 minute है. आना ही पड़ेगा. क्लियर. एक और टाइप, इसे ये आपको तो जाएगा, आप ये सॉल्व करके देख सकते हैं घरों में. लेट्स सी दिस वाला प्रॉब्लम. और ये मैं ऐसे आपको समझा के छोड़ूंगा, आजकल ये सब प्रॉब्लम आते नहीं है. अ बॉय ऑफ मास 50 kg इज रनिंग, ये पूरा हिंदी मूवी जैसा है, एट 5 मीटर पर सेकेंड जंप्स ऑनटू ए 20 kg ट्रॉली मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. मूवी के डकैत की तरह. तो एक हमारे पास ट्रॉली है, एक ट्रॉली है, ये ट्रॉली है, और ये ट्रॉली मूव कर रहा है. कितनी की स्पीड से मूव कर रहा है, द ट्रॉली इज 20 kg की ट्रॉली, और मूव कर रही है कितने में 1.5 मीटर्स पर सेकंड में. और हमारे पास एक बॉय है, गब्बर सिंह भाग रहा है. ये कितने में भाग रहा है, ये 50 kg का बॉय है, और ये भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड. सबसे पहले देखो कि ये बॉय इस ट्रॉली को रीच भी करेगा, डेफिनेटली रीच करेगा. ये 1.5 में जा रहा है, ये 5 में. भागते भागते, दिस इज बिफोर द इंसिडेंट. आफ्टर द इंसिडेंट क्या हो जाएगा, ये कंबाइंड मास हो जाएगा, लड़का इसके ऊपर आ जाएगा. ग्रेड 11 में जब आप देखोगे ना, तो ये लड़का ट्रॉली के ऊपर भी दौड़ेगा टॉम क्रूज की तरह. तो और लिखेगा नीचे वाला आदमी इसको कितने स्पीड में देख रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी आएगा. तो अभी तो बड़ा आसान है, ये लड़का इसके ऊपर आ गया, अब लड़के की वेलोसिटी 0 हो गई. अब कंबाइंड मास कितना है 70 kg. कहता है व्हाट इज देयर कंबाइंड वेलोसिटी. आप जस्ट v लेके रख लो, आपको साइन देने की जरूरत नहीं. ये दोनों सेम साइन में साइड में जा रहे हैं ना, तो इन दोनों को आप प्लस ले लो. और इसका आंसर अगर किसी का नेगेटिव आया ना, चुल्लू पर पानी में डूब के मरो. मतलब हम उसके ऊपर चढ़ने के बाद पीछे आ जाएगा, तो हो ही नहीं सकता है, वो सीधा ही जाएगा ना. तो अगर आपका नेगेटिव आंसर आया तो इसका मतलब आपका आंसर गधे के जैसा आपने सॉल्व किया है इस प्रॉब्लम को. आपका आंसर पॉजिटिव आना ही चाहिए. ये ट्राई कीजिए. और कुछ है, ये भी एक अच्छा है, ये भी देख लेते हैं.
A heavy car of mass 200 kg traveling. अब देखो, अब गधे की तरह सॉल्व मत करो, अब जरा सीखो. Heavy car of mass 2000 and traveling at 10. What is the momentum? 20,000. Has a head-on collision with a sports car of mass 500 kg. Head-on collision. Head-on means both are moving. अब अगर आप इसका स्पीड प्लस ले रहे हैं, तो इसका स्पीड हमें नहीं पता, अभी नहीं पता. Head-on. If both the cars stopped dead on collision, that means in the second part, both velocity is 0. Find the velocity of car B, and our sense says both cars were traveling, so car B's velocity must come negative if you have taken this velocity as positive. नहीं आया तो चुल्लू पर पानी में डूब के मरिए. So how do we solve this problem? This into this plus this into its speed V. U this time U, we don't know, should be equal to laddu. बोथ आर लड्डू. और जैसे ही आप ट्रांसफर करोगे नेगेटिव हो जाएगा. 2000, come on, 2000 multiplied by 10 plus sports car is 500 multiplied by U2 should be equal to 0 ना. अब ये भी बंद हो गया, 0. So if you transfer it this side, then doesn't it become negative? So automatically U2 comes negative. इसमें क्या था? ट्राई कीजिए इन प्रॉब्लम्स को. एंड दिस कंक्लूड्स आवर चैप्टर ऑफ लॉज ऑफ मोशन, राइट.